every year is growing from strength to strength. If I'm not wrong, the number of players from countries participation this year has gone up as well. And it's great to see some of the local talent do so well. Mohammad Wasim, even last year he did really well. This year consistently he is doing well. I think the way Khuzaima bowled, that was outstanding. Another young kid who probably didn't get enough opportunity, I think, but could be a bright future star as a local player is D'Souza, the young player who just batted for that one ball today also and got that 4 as well. I have a feeling that seeing him bat, how he handles himself, I got a glimpse of him in one of the innings when he got 12-14, just goes to show he's a couple of seconds early on the ball. He gets into position really early, so I think he'll do really well. And you did mention D'Souza, but there are also other, especially some bowlers who played for the first time, caught a lot of attention, especially from you bunch of commentators. You talked about them. Any special bowler that you like? Well, we spoke about Khuzaima, the fast bowler. He picked up 4 wickets as a local talent. We all know Fazlullah Farooqi now has become Wiley Fox. He's so smart. You give him the new ball, he swings the ball, and most important, to pick up wickets in the power play is probably one of the most difficult things to do for any fast bowler, because you have to try and pitch the ball up. You have to back your skills to swing the ball, and that's why you need to hit that sort of length. If you don't get the seam position right, it's a ball in the slot and it gets dispatched. But he swings it every single time and then probably comes and bowls at the most difficult time in any T20 innings, that's the death overs. The last couple of overs, he gets the slower balls right and he gets those Yorkers in. So if anybody watching around the world how a T20 bowler should be equipped with a skill to pick up wickets, probably you have a close look at Fazlullah Farooqi. New ball picks up wickets with the lengths that he bowls. As the ball gets older, he's got the variations to bowl the slow balls, and of course, as a fast bowler, the Yorkers always come in handy. And generally, the level of competition, how have you seen it? Oh, incredible. Calling this incredible. The defending champions, my Emirates, unfortunately have been, batted out like Sharjah Warriors from that previous game yesterday. But Benton getting 200s in the competition, that's been phenomenal. Shai Hope, the way he's doing, and to me, the man for maybe season 3, 2025 has been Gulbuddin Naib. With his big muscles, it's not just for show. He's putting in the hard work. I'll tell you that. Thanks to his batting prowess, that the Dubai Capitals are in the final. Absolutely. Question from the media, please. If you want to watch exciting cricket, you have to watch DP World ILT20. और खास तौर से जो हमारा जो एक रीजन है UAE के लोग, UAE के locals के लिए, and most importantly, if you look at the commentary panel from Wasim Akram, Waqar Younis, Harbhajan Singh, Virender Sehwag, it's a beautiful mix between Hindi and English. So it's not just about exciting cricket, it's also about exciting voices that are voicing some exciting cricket. So you must watch ILT20. Also, one more question. I would like to ask you, since you have a very good exposure of all the leagues in the world, so I would really like to know how do you rate this league and where do you see this? Very highly, because आप ये देखिए, एक तो जिस सीजन में ये कराया जा रहा है, परफेक्ट क्रिकेटिंग ये वेदर रहता है, और क्रिकेट को देखे 130 वाला भी स्कोर ऐसा नहीं लगता कि कोई टीम एक तरफ लेके चली जाएगी, बिकॉज दूसरी टीम के पास भी उस किस्म के बॉलर्स हैं कि 130 में भी वो स्कोर्स डिफेंड करते हैं, और वो हुआ भी है. सो एवरी सिंगल बॉल इट्स अबाउट फाइटिंग. सो आई रेट दिस लीग रियली हाई. एक IPL अपने अलग दर्जे पे चल रहा है, लेकिन ये दूर नहीं है, ये बहुत करीब है. और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स जुड़ते चले जा रहे हैं, प्रोबेबली, एंड आई थिंक दिस इज़ द सेकंड मोस्ट वॉच लीग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और उसका एक कारण है ना, अंत में आप जितना मर्जी प्रमोशन कर लीजिए, कोई 5 मिनट के लिए आएगा, कोई 10 मिनट के लिए आएगा, लेकिन जो आदमी आता है वो पूरा मैच क्यों रुक के देखता है, क्योंकि टॉप क्वालिटी क्रिकेट हो रही है. सो IPL के बाद आई रेट दिस वेरी हाईली. खुजैमा की बात कर रहे थे, अभी डिसूजा लड़का जो है, मोहम्मद वसीम की बात की. ये एक जो प्रोसेस है, अभी सिर्फ 3 साल में आप कहें कि एकदम से UAE की टीम ऐसी बन जाएगी कि धमाका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो समय लगता है. क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से आपके कॉम्पिटिशन्स रहेंगे
वो धीरे धीरे उनका क्रिकेट का स्तर और बेहतर होता चला जाएगा। और फ़र्क देखिएगा, डिसूज़ा ILT20 के बाद या मोहम्मद वसीम माई एमरिट्स के साथ समय बिताया उन्होंने, पोलार्ड के साथ, यहाँ पे जेसन रॉय के साथ डिसूज़ा बल्लेबाजी कर रहे हैं, टॉम कोल और कैडमोर। किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं वो बड़ी अच्छी सीख होती है। ड्रेसिंग रूम में मैच से पहले एक खिलाड़ी किस तरीके से अपने जोन में आता है वो एक तैयारी होती है, विजुअलाइजेशन। तो कई बारी वो चीज़ें उस तरीके से वो प्लेयर्स को वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता नहीं है, लेकिन अब वो टेस्ट कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे को एक अच्छे बड़े मैच में जाके स्कोर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट ये आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। ये जो ILT20 का प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, ये एक अद्भुत अनुभव रहेगा जो यहाँ से युवा खिलाड़ी लेके जाएंगे ना, उनका स्तर अपने आप बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। और सिर्फ 3 टीमें नहीं, अपने आप देखिए जो प्लेयर्स का चयन भी होता है उसके बारे में भी ये जितनी भी टीम्स हैं ना बहुत करीब से सोचती हैं। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ, माई एमरिट्स ने एक खिलाड़ी रखा था बेवन जेकब्स, 22 साल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उनको ILT20 में क्यों भेजा? अगले साल 2 साल में आप देखेंगे वो खिलाड़ी जो है ना वो IPL खेल रहा होगा, वो तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हर टीम अपने स्काउट्स हर जगह भेजती है और यहाँ पे भी आके स्काउट्स देखते हैं, वो तैयारी रहती है। बेवन जेकब्स को यहाँ क्यों भेजा? क्योंकि आपके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेल रहे हैं और टॉप क्वालिटी कंपेटिटिव क्रिकेट है, तो इसलिए उनको भेजते हैं। तो वो 3 टीमें स्काउट्स है, आने वाले टाइम में देखिएगा स्तर कितना और बढ़ता चला जाएगा। हो सकता हूँ उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, इंडियन डोमेस्टिक जी। सवाल ये है कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है तो उनका नाम नहीं था वहाँ पे, जैसे करुण नायर जिनमें से एक नाम है। क्या बताना चाहिए कि आपको क्या लगता है कि उन खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, करुण नायर के लिए मैं खुद कहता हूँ उनका चयन नहीं हुआ था, मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था। अद्भुत खिलाड़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं, और जिस तरीके से वो रन बना रहा है आपको VVS लक्ष्मण की कमबैक स्टोरी की याद दिलाता है। याद है आपको जब VVS लक्ष्मण भी भारतीय टीम से बाहर हुए थे तो एक सीज़न में उन्होंने लगभग 1000 रन बना दिए, 900 कुछ बना दिए थे, एक 13 शतक था, फिर एक दोहरा शतक था। थोड़ा सा हैरान हूँ, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट फिर आपको बताता भी है कि इतना मजबूत क्यों है, क्योंकि आपके जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स जो है अंत में 11 ही खेलने हैं। आपके बैटिंग ऑर्डर में वो जगह कहाँ आपको नज़र आ रही है? जब तक दुर्भाग्य से ऐसा होपफुली हो ना कि कोई प्लेयर इंजर होता है तब किसी एक प्लेयर को वो चांस मिलता है, नहीं तो सभी खिलाड़ी जो है वो एक लेजेंडरी स्टेटस की तरफ चले गए। और जो रन बनाते आ रहे हैं वो स्टेटस अलग है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में वो रन बना रहे हैं, इसलिए वो आपको वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ रन बनाने नहीं, आप किस रफ्तार से रन बनाते हैं और अपनी टीम के लिए कितने मैचेस जिताते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अंत में इट्स नॉट अबाउट पर्सनल ग्लोरी, इट्स अबाउट आपका जो योगदान होता है टीम में, हाउ इफेक्टिव इज़ that winning a game for your team, that is of prime importance. That's why we're not seeing so many new faces, but it also goes to show how the Indian team is doing well, and BCCI और NCA इतना अच्छा काम वैसे ही कर रहा है। तभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, आज विभिन्न देशों से कंट्री से लोग BCCI NCA जाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से यंगस्टर्स की तैयारी होती है। और ये सिर्फ ये नहीं कि आपके इंडिया ए हो या नेक्स्ट इन लाइन आपके अंडर 23 के हो, अंडर 16 की लेवल से आपके जो बच्चे NCA कैंप्स में कर रहे हैं अंडर 19, तो वो तैयारी वहाँ से लेके चल रहे हैं। जो खिलाड़ी इंडिया अंडर 19 में खेलता है वो 1 महीना अगर BCCI के कोचेज़ के साथ लगाते हैं तो लास्ट हफ्ता उस प्लेयर का जो पर्सनल कोच होता है वो भी आके अटेंड करता है कि आप गेम में उनके क्या चेंजेस कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप प्लेयर को तैयार करें ताकि एक खिलाड़ी जो सीख रहा है वो कंफ्यूज ना हो। सो दी स्मॉल लिटिल थिंग्स टू ब्रिज द गैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप कह सकते हैं, बट मोहम्मद शमी वॉज ऑल्सो ऑब्वियसली कमिंग बैक इज़ वेल, मैच विनर मोहम्मद सिराज इज़ अ मैच विनर इज़ वेल, बट क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हो दैट्स व्हाई दे गॉट अ लिटिल स्पिन हैवी, बिकॉज आप एंड में 50 ओवर के गेम में आप 30-34 ओवर स्पिन के देख रहे हो। नया बॉल पावर प्ले में आपको पेस का नज़र आएगा, फिर अंतिम कुछ ओवर में पेस नज़र आएगा, बीच के सारे ओवर आपको सिर्फ स्पिन नज़र आएंगे। शारजा वॉरियर्स एंड वो एक मुकाबला जो कल शाम को देखा था निकलस पूरन और बेंटन, अगर वो रन बनाते चले जाते तो फिर वो अलग होता, लेकिन शारजा वॉरियर्स जब सही समय था वो 2 विकेटें निकाली
And I think that surprise delivery that got Nicholas Puran, वो bouncer वाला, I think to me that was a game changer because आते ही मान 3 बॉलों पे 2 चौके 1 छक्का मारा था, ऐसा लगा था कि वो डगआउट से सेट होके आए थे निकोलस पूरन. सो आई थॉट टीम सऊदी ने अपनी टीम को हैंडल बड़ी अच्छी तरीके से किया था और ठीक समय पे वो विकेट चटकाते चले गए. एंड साइफर्ट्स 40 वाज द गेम चेंजर. जब मैं एंटरटेनमेंट कहता हूँ, सो एंटरटेनमेंट फ्रॉम अ स्पेक्टेटर व्यू पॉइंट की चौके और छक्के आपको देखने को मिल रहे हैं. सो शॉट सिलेक्शन आपका बेहतर हो जाता है. देन टू स्विच टू योर मोड, इट्स ऑल अबाउट बॉल सिलेक्शन. T20 में कई बार होता है कि यू टेक दैट हाफ हार्टेड चांस की विकेट्स इतनी अच्छी है, सी बॉल एंड हिट थ्रू द लाइन. अब बहुत सारी चीज़ों में आप लोग ये नहीं बात करते कि 50 ओवर की क्रिकेट में जब से वो रूल चेंज हुआ है ना कि 40 ओवर तक आपका 5वां खिलाड़ी भी वो 30 यार्ड के दायरे में होगा, दैट इज़ अलाउइंग यू और एनी टीम टू हिट मेनी मोर बाउंड्रीज. दैट्स वाई इन 50 ओवर क्रिकेट ऑल्सो यू आर सीइंग मेनी मोर 300 being scored or more than 300 being chased down as well. So वो भी एक पहलू. विकेटें इतनी अच्छी हैं but it's all about longevity. जब 50 ओवर की क्रिकेट आती है ना, so as a batsman switch mode मैं बताता हूँ. If I was coaching, I've coached some teams as well. 5 गेंदबाज अगर आपको बॉलिंग कर रहे हैं ना, सिंपल मंत्र है, किसी ना किसी एक बॉलर का एक स्पेल आपको तंग करता है एज अ बैट्समैन, तो आपने सिर्फ सिंगल लेके दूसरी तरफ जाना है, स्कोरबोर्ड चलाते रहना है. 5 बॉलर वेट करो ना, बॉलिंग चेंज तो आने वाली है. और आपको पता है कि 50 ओवर की क्रिकेट में एक स्पेल 3 ओवर का होगा, बीच में 2 ओवर का होगा, फिर एक और 2 ओवर का होगा, फिर एंड में 3 ओवर का होगा. तो वो एंड में कैलकुलेशन है ना, कौन सा बॉलर कब आपको तंग कर रहा है, इंतज़ार कर लीजिए. और आजकल तो आप कोई भी बैट्समैन है, छक्के इतनी आसानी से मारते हैं, वो आप अगर 12 डॉट बॉल भी खेल जाते हैं तो अब उनकी कैलकुलेशन होती है कि भाई कभी भी वो 12 रन जो है ना, वो 12 डॉट बॉल कवर कर लूँगा, मेरे लिए तो 2 हिट है. बॉलर का वेट करना है. सो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, हाउ यू कैलकुलेट एंड think about your innings as well.